औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ नाज़रीन हाजिर है। आज के प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि हमारे प्रोविंस से बहुत रिलेट करता है और आज पिछले हफ्ते उसकी एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की उस हवाले से रैली, इससे पहले भी आवाज़ें उठती रही हैं। जब से कोविड-19 आया है, हमारे लॉन्ग टर्म केयर, चाहे वो पब्लिक रिलेटेड हो चाहे प्राइवेट रिलेटेड हो, वो एक स्टेक्स के ऊपर है और एक बड़ी तादाद में हमारे सीनियर्स जो है वो इस दुनिया से गुजर गए इस कोविड-19 के पूरे अरसे के अंदर। इसने पूरे सिस्टम को हमारे एक्सपोज कर दिया है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम है, ये इसके अंदर क्या खराबियां हैं, क्या खामियां हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, वहाँ से जो लोग रिलेटेड हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, इसने पूरा एक्सपोज कर दिया है। और अभी जगमीत सिंह साहब ने और उनके जो ग्रीन पार्टी की लीडर थी, उन्होंने जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की रैली का जो है हिस्सा बनी और वहाँ पर ये बात उन्होंने बड़े वजाहत के साथ कही है कि ये जो पब्लिक प्राइवेट सिस्टम के अंदर लॉन्ग टर्म केयर चल रहे हैं वो प्रॉफिट बेस्ड है, इसको प्रॉफिट बेस्ड नहीं होना चाहिए। इस प्रॉफिट बेस्ड होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। तो हम आज जो है अपने पैनल्स हमारा एक मौजूद है और उसको जो है उससे हम डिस्कस करेंगे इस लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से भी, इसके अलावा भी बात करेंगे। और आपको पता है कि हमारा जो पॉलिटिकल टॉक का प्रोग्राम होता है उसमें हमारी कोशिश होती है कि लिबरल पार्टी का कोई नुमाइंदा, कोई वर्कर्स हों, वॉलंटियर्स हों, कोई काम करने वाले साथी हों जो मोहब्बत करते हों लिबरल पार्टी से या कंजर्वेटिव पार्टी से या जनाब एनडीपी से, जो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमने आज 3 अफराद को जो है आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म केयर के जो इशू है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और उसके बाद हम डिस्कशन में वापस आते हैं। लेट्स वॉच अ वीडियो। Because of for-profit long-term care, the seniors were getting less care. They were horrible conditions. Syringes being reused, medication not available, PPE not being available. Profit has been killing seniors. So we're making a very clear demand. We need to get profit out of long-term care. This for-profit long-term care home is the site of the worst COVID-19 outbreak in the province. 14 have died from COVID-19. But others have died because of it, including federal Green Party leader Annamie Paul's father, who died of an infection last spring. Anyone who has someone in one of these homes, you know that they're not getting the care that they need, and it is not because of the staff. It is absolutely not. It is because when you put profit into healthcare, corners get cut. And when corners... We need funding. We can't do it alone. No province can do it alone. We need their support. If we want to change the system, a broken system that's been around for decades, we need money. That's what it comes down to. And if we get the funds, then we can make some massive changes. But we need. Our members are concerned. They're nervous. They're going to work every day. They still lack the personal protective equipment they need in order to feel safe. They're dealing with deaths in the long-term care facilities. But I think the frustrating part for them is we've been talking about this for years and nobody's done a thing. And a lot of this started, Vasi, back in 1995. That's what happens when the care of our parents and our grandparents are turned over for those that are determined to profit off of them, and that's the truth. If everyone is at work in a long-term care facilities, there's usually one PSW for 12 to 14 residents. At night, it's about 1 for 30 and 1 for 40, depending on afternoon or midnight shift. So the question is regulations. The question is hours per resident. We've been advocating for years that there should be 4 hours of care per day per resident. That means that regardless of your profit or not for profit, you would have to hire enough people to make sure that you're living up to the commitment to the residents. But nobody's doing it. Everybody else, absolutely nothing. Mike Harris's government actually created the problem or made the problem even worse, so nobody's done it. So there's enough blame to go around, but enough about the blame. Who's going to fix it? Because we all know what the problem is. It's about low pay. Look, look, PSWs have no respect. They get paid very little. In non-union environments, they make basically minimum wage. Because of the deregulation and for profit, they have to work in 2, 3 long-term care facilities because they're just given part-time hours, casual hours. That way, the employers don't have to pay benefits. So here's workers that are providing such an essential service for our families,
and are treated horribly. The pay is terrible. And so they've left. At the time of the pandemic, there were tens of thousands of PSWs that left the industry because... तो नाज़रीन, आपने हमारी वीडियो देखी और वीडियो के अंदर हमने जो है वो उस मसले को हाईलाइट करने की कोशिश की है जो आज की इस कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुआ है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। वो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं जो कि इस माशरे की डेवलपमेंट में जिन्होंने पिछले कई दहाइयों से बड़ा हिस्सा लिया था। और ये मुल्क जो आज कनाडा इस काबिल है कि एक बड़ा मुल्क कहलाता है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क, एक डेवलप मुल्क कहलाता है, वो तमाम लोग हैं, वो तमाम बुजुर्ग हैं जो आज हमारी लॉन्ग टर्म केयर के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं। तो क्या इस कौम की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनका ख्याल रखा जाए, बजाय ये कि हमारा जो पूरा माशरा और हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ में प्रॉफिट तलाश करते हैं, हम प्रॉफिट को एक कोने पे रख दें और जो है इस मसले को फिक्स करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो, अपने प्रोग्राम्स के अंदर जनाब 3 मेहमानों को बुलाया है। लिबरल पार्टी से जनाब मज़हर शफीक साहब मौजूद हैं। मज़हर शफीक साहब जो है स्कारबोरो सेंटर से लिबरल पार्टी के नॉमिनी भी हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शंस के अंदर एक भरपूर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और तैयारी आजकल जोरों बाजू पे ज़बरदस्त इन्होंने तैयारी का लगाई हुई है। वेलकम मज़हर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मेरे साथ दूसरे मेहमान मेरी जानी पहचानी शख्सियत और मेरे फेवरेट जनाब असदुद्दीन साहब। असदुद्दीन साहब जो हैं वो हमारे उन नौजवानों में से हैं जो यहाँ पर ब्रॉडअप हुए हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को बिल्कुल जनाब दिलो जान के साथ सपोर्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है मैंने इनसे ज़्यादा जो है वो जनाब ज़बरदस्त तरीके से पैशनेट होके कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग कम ही देखे हैं। लोग बड़ा दबी दबी अल्फाज के अंदर हमारी कम्युनिटी के अंदर आमतौर पर जो है कंजर्वेटिव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने असदुद्दीन को जो है कम अज़ कम इस मामले के अंदर जो है बड़े ऑनेस्ट हैं और बड़े दिलो जान से कंजर्वेटिव को सपोर्ट करते हैं, उसके नज़रियात के साथ फुल्ली अवेयर है। इसी तरह मेरे तीसरे मेहमान फ़िदा भाई, फ़िदा साहब जो ना, फ़िदा खान साहब हमारे एथलीट भी हैं, ज़ोरदार कैंसर सोसाइटी की कहीं पर अगर रैली चल रही हो तो उसमें भी मौजूद नज़र आते हैं, ज़बरदस्त वॉलंटियर हैं। इनका ताल्लुक एनडीपी से। एनडीपी को क्यों सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए सपोर्ट करते हैं, आज हम ये बात भी पूछेंगे उनसे कि भाई आप एनडीपी को क्यों सपोर्ट करते हैं। फ़िदा भाई, हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो एनडीपी को सपोर्ट करते हैं, तो ये सीधा चंद लोग हैं जो एनडीपी को भी सपोर्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी। ये एक अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। तो वेलकम जनाब, डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। तो मैं फ़िदा भाई से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि जगमीत साहब की मैंने जो है ना वीडियो दिखा दी है इनको, और मैंने कहा है कि जी आपके जो लीडर साहब हैं उन्होंने जनाब इसके ऊपर जो है एक स्टैंड लिया और वो फरमाते हैं कि ये जो है ना प्रॉफिट बेस्ड जो है ना लॉन्ग टर्म केयर की वजह से ये मसला उठा है। और ये मसला हमें पता है कि वो 1995 में माइक हैरिस साहब ने जो है इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्राइवेटाइज किया। उन्होंने कहा कि जनाब इसके ऊपर अगर इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर देंगे तो फंडिंग आ जाएगी और लॉन्ग टर्म केयर और बन जाएंगे, गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती। तो क्या कहते हैं फ़िदा भाई, आगे बात बढ़ा दें इसमें बस। जी थैंक यू आरिफ साहब, अप्रिशिएटेड कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देखें या किसी सेक्टर का देखें, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके इस सिचुएशन में जैसे ग्लोबल पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, और जैसे आपने जिक्र किया कि जगमीत ने और हमारे ग्रीन पार्टी के पॉल उन्होंने बात की। अब इशू कहाँ पे है? इशू यहाँ पे है कि एम्पैथी की बहुत कमी है यहाँ पे। अब देखें, ओंटारियो में आपके पास 626 लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं, जिसमें से 57% जो हैं वो प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसी तरह से टोटल कनाडा में आपके पास 2039 लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं, जिसमें से 28% जो हैं वो आपके फॉर प्रॉफिट हैं। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है हमारी गवर्नमेंट के लिए, देखें सीनियर्स लोग, जैसे आपने खुद जिक्र किया, सीनियर्स वो आम सीनियर्स नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कनाडा को बिल्ड किया, जिसकी बेस पे आप और हम लोग ये अय्याशी कर रहे हैं। जिस तरह से हम कर रहे हैं, उन्होंने बिल्ड किया, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने काम किया, इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए, सब कुछ किया। अब ये है कि जैसे फैमिली वाले को छोड़ के आते हैं अपने किसी लव्ड वन को लॉन्ग टर्म केयर में, अब वहां पे क्या होता है, एक तो वहां पे उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। जैसे हम जो है इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बाद में आते हैं। तो आप, मैं पॉइंट आपका आ गया कि जी आप प्रॉफिट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होने जा रही है ये एनडीपीस की मुखालफत करती है, राइट? सीधी सी बात है। मैं बात कहूँ, मुख्तसर से कह लूँ, बात ये है कि जब आपका हमारा हेल्थ केयर बिजनेस है, हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो प्रॉफिट बेस्ड नहीं है।
हाँ, और इसी तरह से वो चलता है। लेकिन ये है कि जो आपके सीनियर तरीन जो सबसे ज्यादा नीडी लोग हैं उनके लिए आपने प्रॉफिट बेस कर दिया है कि मतलब उनकी लाइफ की आपके पास कोई वक़्त नहीं है। ठीक है। और जब के कोविड शुरू हुआ 1 साल हो गया है, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को पता है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे एक दूसरे बात तो कर रहे हैं हमें ये करना है, लेकिन एक्चुअली कंक्रीट स्टेप कोई नहीं लिए। और उसकी गवाही मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं एज ए हेल्थ केयर वर्कर आई कैन सी दिस हैपनिंग ऑल द टाइम। ठीक है, ठीक है जी फिदा, आपका पॉइंट आ गया कि जनाब के जो है ना ये वनरेबल सिचुएशन है। मैं मजहर शफीक साहब, आपकी लिबरल पार्टी जो है वो डॉल्टन मैकेंटी के दौर में एक एरा गुजार चुकी है, वेन का एक पूरा दौर गुजरा है, उससे पहले माइक हैरिस, और उसके बाद जो है आपके आजकल जो है वो फोर्ड साहब। लेकिन किसी सबको पता है कि ये कोई मसला आज का एक दिन का मसला नहीं, बहुत अरसे से मसला चल रहा है, इसकी आवाजें बड़ी उठी है, माजी के अंदर भी उठती रही हैं, लेकिन इसको फिक्स क्यों नहीं किया गया? लिबरल पार्टी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और अब फेडरल लेवल के ऊपर इस मसले को सीरियस क्यों नहीं ले रही? सबसे पहले तो आरिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। फिदा भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उसमें जैसे कि आपने बताया माइक हैरिस के दौर पे ये शुरू हुआ था, उस वक्त ये प्राइवेटाइज किए गए। अब मसला यहाँ पे ये थोड़ा सा आ जाता है कि जब आप कोई गवर्नमेंट में होते हैं और चीज़ें रन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि पूरे का पूरा लोड जो है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे डालते हैं तो उसको उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, उसको ये देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है क्या इस काबिल हैं कि उसको पूरी तरह से वो कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम डेफिनेटली कोविड ने हमारी आंखें खोली हैं। ये कोविड-19 की वजह से ये जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स की जो सिचुएशन सामने आई है, ये एक मैं समझता हूँ कि आई ओपनर है हम सब के लिए। और टाइम मेरा ख्याल आ गया है कि हमें अब इस पे सोचने की जरूरत है कि मूविंग फॉरवर्ड हम जो है इसको कैसे लेके आगे चलना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे मजीद डिस्कशन की जरूरत है और हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख के मेरा ख्याल है आगे मूव होने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि अभी हमारे नई लीडरशिप भी आ गई है और हम जो है प्लेटफॉर्म के भी अपना प्लेटफॉर्म भी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये वो चीजें हैं जो डेफिनेटली विल बी डिस्कस्ड और हम फीडबैक जो है लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा और फिर इसके ऊपर डेफिनेटली विल मेक समथिंग। अच्छा मजहर भाई आपकी पार्टी के अंदर नई लीडरशिप आ गई है, आप लोग ऑफिशियल जो है वो कोई पार्टी के नंबर सीट्स कम होने की वजह से आपको वो उस तरीके से नहीं मिल रहा जो एक्सपोजर जो मिलना चाहिए, राइट? लेकिन बहरहाल पार्टी मौजूद है, उसने कई साल रूल्स किए हैं यहाँ पर, तो क्या ऐसी नई चीज हो रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि जनाब कि हमारी पार्टी जो है वो कोई नई चीज ऐसी नजर आ रही है? क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें जो है ना वो दब गई हैं पॉलिटिकल, हमारी कम्युनिटी के स्पेशली। जी देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें दब गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्च में हमारे जो है न्यू लीडर जो हैं स्टीवन डेल डुका वो मुंतखब हुए और उसके बाद से लेके आज तक ही इज वेरी एक्टिव और हर इश्यूज के ऊपर उन्होंने जो है वो बात की है। स्पेशली कोविड के इशू पे ही वाज वेरी वोकल और ही स्टिल वेरी वोकल। लॉन्ग टर्म केयर होम्स के बारे में ही इज वेरी वोकल। मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारी पार्टी जो है रीबिल्डिंग के प्रोसेस में से गुजर रही है और ये जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस अभी शुरू हुआ है उसमें जो हमारे लीडर आए हैं स्टीवन डेल डुका वो एक विजन के साथ, एक नए विजन के साथ आए हैं। उसमें वो 50% वुमेन और 30 अंडर 30 का वो जो है वो लेके आए हैं कि 30 यंग यूथ में से जो है वो लाने हैं। तो ये एक विजन, नया विजन के साथ वो पार्टी को रीबिल्ड करने का जो है उन्होंने जिम्मा उठाया है और उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरीके के साथ वो अपनी नई सोच को लेके आगे आए हैं उसके साथ इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको वाज़िया नजर आएगा कि लिबरल पार्टी जो है वो इंशाल्लाह ताला दोबारा से जो है उस मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में दोबारा मेरे पास आपके कमेंट्स के ऊपर सवाल है लेकिन मैं उसको आखिर पे रख लेता हूं, अभी नहीं करता क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि गुफ्तगू जो है वो असद माइक हैरिस ने जब ये प्रोग्राम बनाया कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए और ये बात जैसे कि मजहर ने भी कही कि सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं चला सकती, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो है वो इंडल्ज होना बहुत जरूरी है।
तो आप ये जो इश्यू उठ रहा है, एनडीपी तो ठीक है, एनडीपी के तो जाहिर मैनिफेस्टो है, लेबर्स को, लोअर क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को वो सपोर्ट करती है, तो उनके पूरे एजेंडे के ऊपर ये बात मौजूद है कि जनाब के वो किस तरीके से इसको डील करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि मुझे कि ये जो फोर्ड साहब हैं, उन्होंने कहा भी पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो, ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या सोल्यूशन है इसका? इसमें इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त जो मौजूदा लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी की जो पॉलिसी है 1960s में बना है, और 1960s में जो बना है, एवरेज एज ऑफ कैनेडियंस वाज 27 एंड people used to live till 70. People are living for much longer now. And so the dynamics have changed. And right now there's a बहुत बड़ा shortfall है. 40,000 seniors are on waiting list and another 400,000 are looking for a place for long-term care. तो इसको multiple angles से tackle करना पड़ेगा। एक तो हमारे को देखना पड़ेगा कि OECD डेवलप कंट्रीज में कौन से कंट्रीज में मॉडल अच्छा चल रहा, जैसा डेनमार्क है, जैसा साउथ कोरिया है। We have to look at incentives as well, like seniors should be given waves, their property taxes could be waived. There could be incentives for लेकिन अभी लेकिन अभी जो लॉन्ग टर्म केयर है, आपकी गवर्नमेंट भी मौजूद है, फोर्ड साहब की गवर्नमेंट मौजूद है, ये तो अभी एक्सपोज हो गया ना पूरा सिस्टम, इसके अंदर तो अभी फौरन इमीडिएट आपको एक्शंस लेने हैं। देखिए ये जो आपकी प्लानिंग फेज है वो तो हम आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि फर्दर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बताइए कि फोर्ड गवर्नमेंट को मतलब हाउ दे विल टैकल दिस इशू। So Ford, when he came in, he realized that the long-term care has been badly decayed over the past 10 to 15 years. It's deteriorated. And so he addressed the need to revamp the system, increase funding, and look ways to work with the federal government to address the problem. Then COVID showed up. So I think it's a work in progress, and measures are being taken by the government, both from a federal and provincial level. But I think this is going to be one of the top issues post-COVID, is how to address long-term care. Okay, but I don't agree. Yeah, I believe the model should be mixed. Okay. Both incentive for private investment, but also regulations so that there's no abuse. And it should be a private and public partnership, and also give room for families, flexibility, tax breaks, and incentives. So if they want to keep their parents with them, there are benefits for that as well. Okay, इधर आपकी तरफ आता हूँ कि एक इशू जो जेरी डायस ने मेरी वीडियो के अंदर भी उठाया कि जो आपका PSW का जो वर्कर है, जो रैली जो की है उसके अंदर भी वो तमाम लोग मौजूद थे। एक तो उनके ऊपर ओवर बर्डन है कि वो डेज के अंदर जो है वो तकरीबन 12 से 13 आदमियों के ऊपर जो है वो सीनियर्स के ऊपर एक PSW वर्कर है, और रात में तो वो 35 to 40 पीपल्स को एक आदमी जो है ना कवर करता है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो चल रहे हैं लॉन्ग टर्म केयर, वो पैसे बचाने के लिए कम स्टाफिंग करते हैं और उनके ऊपर ओवर बर्डन कर देते हैं। तो आपकी पार्टी के पास, आप लोग तो वर्कर क्लास को इसको बहुत, सोल्यूशन क्या है इसका? मतलब आवाज से उठाने से या पोजीशन करने से तो मसला हल नहीं हुआ, तो बहुत अरसे से चला आ रहा है मसला, और कोई मतलब डिकेड से मसला, संजीदा कोशिश की जरूरत है ना इसमें तो बड़ी। जी दुरुस्त कहा आपने, थैंक यू। देखिए प्रॉब्लम जहाँ पे आ रहा है, जो आपने जिक्र किया ना, जैसे शफीक भाई ने जिक्र किया और सादुद्दीन भाई ने जिक्र किया, प्रॉब्लम देखें अब मैं इसे कैसे डालूं कि अब इस बात में आ जाए। ये प्रॉब्लम आज का नहीं है जैसे सब ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम था नहीं, बल्कि ये कहें कि गवर्नमेंट्स ने इसे ओवरलुक किया। क्योंकि अब देखें, मैं अभी की बात कहूँ, कितने जो हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म केयर जो है सेंटर हैं, जिसमें हमारे जो ना कंजर्वेटिव के जो एक्स उनके स्टाफर हैं, वो उनमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे बैठे हैं, ठीक है, उन्हें फिक्स नहीं करने दे रहे। अब देखें जो पहले दिनों में हुआ, कितने लोग फोत हुए, उस दौरान में
जितने भी फोर्ड साहब ने, मतलब कि हमारे प्रीमियर ने, वो हमारे जो लॉन्ग टर्म केयर की मिनिस्टर हैं, वो भी बल्कि उनकी तरफ नहीं गई, जाके विजिट नहीं किया, जाके उन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं किया। और इसी तरह से फोर्ड ने कह तो दिया हमारे प्रीमियर ने, लेकिन उसके बाद उस पर काम कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये है, मैं आपको ये कहता हूँ, ये जो है कितने बिजनेसमैन है, ठीक है, अब आप बिजनेसमैन से, इन दोनों मेरे भाई से पूछे हैं कि ये बिजनेसमैन है, क्या आज के अपने बिजनेस में नुकसान होता है? नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि लोगों की जिंदगियों से पे जब काम किया जाए तो वहां पे कंप्रोमाइज किया जाए? अब देखें, जितने भी लोग होते हैं, आप अपने प्राइवेट बिजनेस में करें, इसी तरह से ठीक है प्राइवेट बिजनेस पे रन करवाएं, लेकिन प्राइवेट बिजनेस में उनके पास इनफ लोग तो होने चाहिए, और इनफ लोगों के साथ साथ इनफ उनके साथ उनकी बेसिक नीड्स तो मीट होनी चाहिए। ये कौन सी बात है कि एक स्टाफर जो है वो 4 घंटे एक जगह काम करता है, 2 घंटे दूसरी जगह करता है, 2 घंटे किसी दूसरी जगह करता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये गवर्नमेंट की है, ये लेबर लॉ के अंदर आती है। अब गवर्नमेंट को करने, अब देखिए लिबरल गवर्नमेंट हमारे साथ, जब से मैं कनाडा में आया हूं तब से लिबरल गवर्नमेंट थी। अब पिछले 3 साल से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है। क्या मतलब इसका? ये मतलब मैं कहूँ कि जो लिबरल के टाइम पे कुछ नहीं था तो मसला खत्म हो गया, था ही नहीं। अब कंजर्वेटिव के टाइम पे जब ये आया, चले ठीक है, हम ये मान लेता हूँ कि जब पहले दिनों में आया तो हमें गवर्नमेंट हमारी तैयार नहीं थी। अब तो 1 साल हो गया है, उसके बावजूद भी कितने वादे कितने हुए हैं। अब उसके कितनी देर लगती है कि आप उसे आयरन फिस्ट डालें, उसे आयरन रिंग उनके इर्द गिर्द डालें कि अपने सीनियर्स को बचाएं। अब उसको बचाने के कितने तरीके हैं? 2-3 चीजें हैं। 2-3 चीजें ये हैं कि सबसे पहले जो स्टाफ है उसके पास इनफ स्टाफ होना चाहिए। जिस तरह कि आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास जो है ना एजुकेट इतना पूरा स्टाफ होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास उनकी वेज जो होती है वो रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। अब ये जो कि गवर्नमेंट का मसला है, ये लॉन्ग टर्म है, ये बुजुर्ग हैं, इन्हें कोई नहीं पूछ रहा। अब जैसे आपने खुद कहा, एक बंदा काम करता है 40 लोगों पे, ये कौन सी इंसानियत है? ठीक है, आप और फिदा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। फिर मैं जो है ना शफीक से आपका पॉइंट आ गया, मैं जो है ना ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक लेता हूं। जी लोगों में से क्या मैं एक बंदा होना चाहता हूँ वहां पे? कभी भी नहीं। कोई और होना चाहता है? कभी भी नहीं। फिदा, तो अगर हम नहीं चाहते तो हम दूसरों को क्यों डालते हैं सिचुएशन में? ठीक है, इधर तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। फिर मैं मजहर शफीक से ना सवाल पूछता हूं कि जनाब ये ब्रोकन सिस्टम जो है वो तो आज की पैदावार नहीं है, बहुत अरसे से इसको चल रहा है, लेकिन मजहर शफीक नॉमिनेटेड भी, इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं स्कार्बोरो सेंटर से, उनके इलाके में भी लॉन्ग टर्म केयर काफ़ी सारे होंगे, तो उनके पास कोई, वो कैसे देखते हैं इसको और कैसे हल करेंगे अगर वो कल के रोज़ हमारे प्रोविंशियल MPP बन गए और जनाब वो उनकी गवर्नमेंट आ गई लिबरल पार्टी की एक दफ़ा फिर इस सूबे के अंदर, तो वो इन मसाइल को कैसे हल करेंगे? तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। When we first arrived in Canada, I was in my 6th month of pregnancy. We did not have anybody we know here. I could see her struggle and I could feel her feelings. Seeing the baby the first time, we had a feeling that he's like my sister's baby. At the beginning, like Osama was my brother's friend, but now he's my best friend. It's hard to pay back to them what they did for us. We go and share time together, and part of sharing time, sharing food. कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Olam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Olam Law.
देश से प्यार लिए, प्यारों का इजहार लिए, आए ढेरों सौगातें खुशियों के लम्हात में, अपनों का पैगाम लिए, क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर। In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAM360, CAM360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए. With ICC Immigration, मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ. ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424. It's 905-461-2424. ICC Immigration. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. नाज़रीन, इस वक्फे से पहले जो है फिदा की बात सुन रहे थे। फिदा कहते हैं जनाब कि ब्रोकन सिस्टम है, कोई आज से नहीं है, बहुत अरसे से है और इतना अरसा जो है वो लिबरल की भी गवर्नमेंट रही, उससे पहले जो है वो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट, फिर अभी 2-2.5 साल से जो है वो कंजर्वेटिव की दोबारा से गवर्नमेंट है। लेकिन इस मसले को उस वक्त तक मतलब उठाते रहे वर्कर्स, PSW के वर्कर्स, रैलियाँ निकलती रही हैं, हड़तालें होती रही हैं, ये सब कुछ होता रहा है, माजी का हिस्सा है। मगर आपके इलाके में भी बहुत सारे लॉन्ग टर्म केयर यूनिट, जाहिर बात है वहाँ पर भी बुजुर्ग रहते हैं और आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो सारे, क्योंकि जाहिर बात है वो आपके वोटिंग मेंबर्स भी हैं और जाहिर बात है उनका ख्याल रखना भी है। आपके पास इस तमाम हल का कोई सोल्यूशन आप देखते हैं कि यार इसको इस तरीके से हल करना चाहिए? बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। फिदा भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। एक तो 100% मैं एग्री करता हूँ इनके साथ कि देखें ये जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं, दे नीड एडिक्वेट फंडिंग। स्टाफ का डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है, नो डाउट अबाउट दैट, कि स्टाफ की वजह से
कैन यू इमेजिन कि 24 आवर का पीरियड की शिफ्ट में 3 to 4 स्टाफ मेंबर्स हो, तो कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। मैंने तो इवन ड्यूरिंग कोविड में मैंने ये भी देखा सफिशिएंट उनके पास पीपीई का भी इशू रहा। तो ये वो सारे इश्यूज हैं कि डेफिनेटली ये जो कोविड है इसने हमारी आंखें खोली हैं। ये जो है एक जो चीज है सामने खुल के आई है कि कितनी बुरी हालत जो है इस वक्त लॉन्ग टर्म केयर होम्स की चल रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने हमारे जो प्रीमियर डग फोर्ड हैं वो नाकाम रहे इस सिचुएशन को हैंडल करने में। हमारे जो लीडर हैं स्टीवन डेल लुका, उन्होंने तो उनको कहा भी कि आप आर्मी को जो है वो बुलाएं और वो मैनेज करें हमारे जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं, अगर इस तरह की सीरियस इश्यूज वहां पे हो रहे हैं। तो देखें, जैसा मैंने पहले कहा कि मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन जो अब कोविड ने हमारी आंखें खोली, तो अब ये टाइम आ गया है कि हमें इस इश्यूज के ऊपर जो है लोगों की फीडबैक लेने की जरूरत है। और ये टाइम आ गया है कि हमें इसको ओपन डिस्कशन का ये जो है चैप्टर खुला है कि हम लोगों से फीडबैक लें और देखें कि इस सिस्टम को हमने फ्यूचर में कैसे रन करना है। क्योंकि सीनियर जो हैं वो डेफिनेटली के वो लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम, एनर्जी और कनाडा के लिए जो है वो इसको बिल्ड करने में अपना किरदार अदा किया है। तो उनका पूरा हक है कि अब वो जब वो इस एज में हैं तो उनकी प्रॉपर टेक केयर की जाए। तो उसमें डेफिनेटली मैं ये आपसे फिदा भाई से भी एग्री करूंगा कि हमें इस पे अब सोचना है, लेकिन अगेन हमें जो है वो फीडबैक चाहिए। और इसमें जैसा मैंने कहा कि हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, तो उसमें ये सारा फीडबैक लिया जाएगा, हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे भी लिया जाएगा, आम पब्लिक से भी ये डिस्कशन की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और फिर डेफिनेटली उसमें हम अपने प्लेटफॉर्म में ये अच्छा, मज़र बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात असद ने भी पॉइंट आउट की और मेरे दिमाग में भी थी कि आज मैं आप लोगों से ज़रूर इस तरफ डिस्कस करूंगा कि असद ने कहा कि बहुत सारी जो ममालिक हैं उसके अंदर बहुत जो है ना ये पूरा जो हमारा सीनियर्स को हैंडल्स करने का और का पूरा एक सिस्टम है, एक नेचुरल सिस्टम भी मौजूद है, राइट। जैसे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क है, बहुत डेवलप मुल्क है, वहां पर भी तो बुजुर्ग रहते हैं, वो तो सड़कों पे मतलब मैं तो कहता हूँ 90% 95% ऐसा नहीं होता कि वो सड़कों के ऊपर कोई आ जाए, उनके गरीब से गरीब बच्चे भी उनका केयर करते हैं, राइट। एक सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर है, इसी तरह चाइना के अंदर है, इसी तरीके से और भी दूसरे ममालिक में डिफरेंट तरह का सिस्टम होगा। हमें भी, आपको नहीं महसूस होता कि यहाँ पर भी इस तरह के एक मिक्स सिस्टम की जरूरत है? और जो है वो हम अगर इस सिस्टम्स को देखें जहां पर पेरेंट्स को जो है वो सपोर्ट करें और अपने साथ रखें, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलने चाहिए और जिसकी वजह से लोग मोटिवेट भी होंगे और अप्रिशिएट भी होंगे कि वो अपने पेरेंट को अपने साथ रखें। और जो रिक्वायरमेंट होती है, जाहिर एक स्पेशल किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट होती है सीनियर्स की, आपको ताकि स्लिप्स ना हो जाए, उनके बाथरूम स्पेशल्स होते हैं, उनकी सारी चीजें स्पेशल होती हैं। तो आप लोग इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते कि भाई ये एक नेचुरल सिस्टम भी तो है? और यहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर पहले सेकंड से पहले तक ये सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भी चल रहा था, यहाँ पर भी लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हुआ, जैसे कि असद ने कहा कि 1960 के बाद से जो है ये सिस्टम जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो गया। तो कैसे इसको नहीं आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ाते इस बात को? आरव भाई, आपकी बात बहुत अच्छी और नो डाउट अबाउट दैट। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान को इस कनाडा के साथ कंपेयर नहीं कर सकेंगे। वहां पे एक सिस्टम जो है वो अभी तक चल रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये सारी चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह का वो सिस्टम नहीं है, वन फैमिली यूनिट वाला कंसेप्ट यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद आई एग्री, क्योंकि ये है कि ये डिफरेंट आइडियाज हैं जो बड़े अच्छे आइडियाज हैं, एंड आई थिंक देयर इज ऑप्शन के इन सारे फैक्टर्स को, इन सारी चीजों को देखा जाए और लॉन्ग टर्म केयर के जो फ्यूचर है उसमें ये सारे आइडियाज जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, और मैं समझता हूँ इट इज अ गुड ऑप्शन एज वेल। असद के पास मैं आता हूँ। असद, आपने खुद भी कहा कि और एक बड़ी तादाद नंबर भी बताए कि इतने हमारे लॉन्ग टर्म हैं, लेकिन और इतने हजार लोग जो है वेटिंग लिस्ट के ऊपर हैं। अब जाहिर सी बात है सारे लोगों को तो लॉन्ग टर्म केयर के अंदर नहीं मिलेगी, नहीं जा सकेंगे, उनका कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। एक सोल्यूशन ये है कि भाई जो बच्चे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बेयर करें और गवर्नमेंट जो है उस सिलसिले में उनकी मदद करे कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट फराम करे। तो क्या हमारे जो कंजर्वेटिव, लिबरल और एनडीपी की जो लीडरशिप है, क्या इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि ये सिस्टम ऑलरेडी
था कनाडा के अंदर, हम इसको तमाम कम्युनिटी के अंदर इसको प्रमोट करें, चाहे वो चाइनीज कम्युनिटी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, सिख कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सारी कम्युनिटी इसको, मेरा ख्याल है कि सबके अंदर कोई ना कोई फैमिली सिस्टम पहले से मौजूद था, वो अब डिसइंटीग्रेट हो गया है या डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर अब फैमिली सिस्टम की वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन उसको दोबारा जिंदा तो किया जा सकता है। इसमें आप जो बात बोल रहे हैं बहुत it's very relevant. We have to look at multiple angles. First of all, immediately the wages of the long-term care facility workers has to increase. There has to be better regulations for both public and private long-term cares, minimum staffing levels and training and ongoing monitoring. इसमें government incentives भी होना चाहिए for renovations, for HVAC, windows. इससे crisis से ये मालूम हुआ कि काफ़ी inadequate है long term care facility के services जो है, और हर angle से देखना पड़ेगा, और ये जो effort है ना, it should not be limited to one party. Cross-party efforts should be made because it's requiring all seniors from different political backgrounds and stripes. This is not about politics. It's about what's the best way to look after our seniors in the most cost-effective way and being open-minded on different solutions. अब मैं आपकी खुद हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की एक एग्जांपल दे रहा हूँ. काफ़ी लोग मुझे खुद अप्रोच किए हैं कि एक मुस्लिम long-term care facility को जिसमें halal food है, नमाज के services है, and culturally tailored programs है. I have a lot of doctors in my own accounting practice who are pushing me to start it. But when I looked into it further, it requires a lot. There's a lot of regulation around it, a lot of government regulation, a lot of red tape. And it's a partnership between public and private, and it's not that easy to start up. So isse kya hua ki there's not enough incentive in the private sector, there's not enough government funding, therefore something has to change because we are in a shortfall for long-term care facilities. And this affects all communities. So we right now have 40,000 on the waiting list, 400,000 looking, aging population, and we need to address a more incentive for the private-public partnership so that we can create more community-based incentive programs to offset our costs and provide the care that's needed for our diverse population. ओके, फिदा एक बात जो जगमीत सिंह ने कही, और वो कही उन्होंने कि जनाब के फेडरल फंडिंग की, इसको फेडरल को इसमें जो है ना कूदना चाहिए. आप लोग इस वक्त लिबरल पार्टी के बहुत क्लोज भी हैं, बल्कि उनकी गवर्नमेंट को सहारा भी दिया हुआ है आपने काफ़ी सारा. तो आप ये बताइए कि क्या आप लोग जो है, आपकी पार्टी जो है वो फेडरल फंडिंग को किस हद तक देखती है कि इस मसले को हल करे? देखें, प्रॉब्लम ये है कि जैसे बात हुई है कि ये इश्यू जो है ना काफ़ी आसानी से भी हल हो सकता है. अब जो है दो चीज़ें हैं, इसे हल करने के लिए यू हैव टू ब्रेक इट डाउन. ब्रेक इट डाउन मीन के मसलन के देखें, अब स्टाफ के लिए जितना स्टाफ ज़रूरी होता है, अभी 40 लोगों के लिए ऐसा तो नहीं होता ना. आप गवर्नमेंट एक बेयर मिनिमम रखे कि इतने लोगों के लिए इतना बंदा, और उसके बाद उनमें से एक स्टाफ में से हर वक्त में एक नर्स ज़रूर मौजूद होनी चाहिए लॉन्ग टर्म केयर पे, मसलन के पूरी सर्टिफाइड नर्स जो कि देख सके. मैं खुद आपको कह सकता हूँ कितने लोग हैं कि जिनके नर्स मौजूद नहीं थी, तो उनके साथ वो अब्यूजिव बिहेवियर से उनके साथ ट्रीट किया गया कि लॉन्ग टर्म केयर में बुजुर्गों की टांग भी टूटी, बाजू भी टूटा, गिरे भी, सब कुछ हुआ. अब मैं इसके लिए बड़ी काम नहीं चाहिए, बड़ा वो चीज़ नहीं चाहिए. अब जैसे असद भाई ने बात की कि वो सफाई के लिए भी बहुत बड़ा काम नहीं चाहिए. और तीसरी बात ये है कि जी अब मेडिसिन देखें, आपको उसका नुकसान क्या है. अब गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा. अब जब हम अपने सीनियर्स की लॉन्ग टर्म केयर में हेल्प नहीं कर सकते, तो वो बर्डन हॉस्पिटल्स पे आ जाता है, क्योंकि वो उधर से बीमार होकर आपके हॉस्पिटल में आ जाते हैं, और फिर जो हॉस्पिटल जो होते हैं वो उनको भी और बाकी जो डे टू डे चीज़ें उसे सर्व नहीं कर पाते. अब गवर्नमेंट जो है फंडिंग, अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बेटर पोजीशन में है. अब उस पॉइंट से मैं कहूँगा जैसे गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन $10 बिलियन
जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किटी में पड़े हुए हैं सिर्फ कोविड की हेल्प के लिए, जिसको अभी फोर्थ गवर्नमेंट ने उसे यूज नहीं किया। उन्हें उसे वो एडजस्ट करना चाहते हैं बजट के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। अभी उन्हें ये चाहिए कि उसे यूज करें। लेकिन कहने का ये मकसद है, मैं ये कहता हूँ एनडीपी को और पुश करना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म केयर है या जो इस तरह के इश्यूज हैं, बाकी भी काफी सारे इशू हैं, उसके ऊपर मैं बात आज नहीं कर रहा, कि उसके ऊपर फंडिंग इनफ होनी चाहिए। लेकिन फंडिंग इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। विल डिटर्मिनेशन कि हमने अपने बड़ों का ख्याल रखना है। और जो दूसरी आपने एक और बात की थी, वो पाकिस्तान को कंपेयर किया कनाडा के। पाकिस्तान कनाडा को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में अभी भी वो न्यूक्लियर सोसाइटी का, न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है। यहाँ की आपकी फैमिली जो है इंडिविजुअलिस्टिक है। यहाँ पे 18 साल के बाद बच्चे चले जाते हैं। आप कोई भी पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल या एनडीपी, आप लोगों को ये नहीं पढ़ा सकते कि जी आप दोबारा से न्यूक्लियर बन जाएं, ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं। वो जैसे आपने 60 के बाद कहा ना, ये चीज हो गई, ये हमारी फैमिली वैल्यूज डिटेरिएट हो गई हैं और उस वजह से ये सारे जो हम देख रहे हैं। अब दूसरा एक और है, अब यहाँ पे हर बंदा काम कर रहा है। और जब काम कर रहा है तो घर में आपके पास बंदा कोई नहीं है रखने वाला। अब पाकिस्तान में तो कम से कम चलो 1-2 काम करते हैं, कोई ना घर की ख्वातीन है, वो घर को, बुजुर्गों को या किसी का ख्याल रख लेंगी, ठीक है। अब मैं कहूँ, मेरे वाले साहब, not only Fida, not only Pakistan, in China, in India, in Arab countries, all over the same system is running and very successfully they are running. Okay, it's not only, I don't want only कि पाकिस्तान को मैं कॉर्नर करके, मैं कह रहा हूँ कि उस 56 इस्लामिक ममालिक हैं, उसमें तमाम में सिस्टम बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। चाइना के अंदर चल रहा है, इंडिया के अंदर चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है ये, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान। देखिए वो सिस्टम नहीं है, आप इस सिस्टम को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। वो सिस्टम नहीं है, वो हमारी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है, वो चला आ रहा है। लेकिन फिदा मैं इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से आता हूं, मेरी बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने। देखिए ये हमारी जो मनी ड्रिवन सोसाइटी है, हमारी एक मनी ड्रिवन सोसाइटी है, नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना, वो सिगरेट के दाम बढ़ा देती है ताकि लोग सिगरेट ना पिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं ताकि लोग जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो क्या नहीं, ये आप जब फैमिलीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव देना शुरू करेंगे तो लोग उसकी तरफ तवज्जो देंगे। जो लोग रखना चाहते हैं कम से कम उनको तो आप मोटिवेट करें ना। जो लोग नहीं रखना चाहते या मुमकिन नहीं है उनके लिए, ठीक है लॉन्ग टर्म केयर, लेकिन आप अपना थोड़ा सा बर्डन जो है शेयर तो करें फैमिलीज के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप लोग जाकर अगर बात ही नहीं करेंगे असेंबलीज के अंदर, आप कहेंगे जी यहाँ का सिस्टम ही डिफरेंट है, यहाँ नहीं हो सकता, तो फिर तो कभी भी बात ही नहीं होगी। हम जो इमिग्रेंट्स जो है एक अच्छा सिस्टम लेकर आए ना, वो हेल्प करेगा। लेकिन बात यह है कि जो उसका जो न्यूक्लियर जो बेसिक यूनिट है, मैं उसकी यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जरा ना, मैं आपकी बात हो, मैं समझ गया। मैं जरा मजर से ना दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आता हूं। मैं जरा मजर से जो है ना इस पॉइंट के ऊपर दोबारा, मजर देखिए इतने बड़े 56 इस्लामिक ममालिक हैं, इंडिया है, चाइना है, इतनी बड़ी आबादी दुनिया की जो है, जहां पर ये सिस्टम जो है वो शेयर कर रही है फैमिली। ठीक है, हम ये मनी ड्रिवन सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यहां भी तो हम पैसे देके लोगों को सिगरेट पीने से रोक देते हैं, बहुत सारे पैसे देके बहुत सारे और काम से। तो क्या हम, व्हाई नॉट वी आर गिविंग द फाइनेंशियल to some families who want to care about their parents, हम मोटिवेट क्यों नहीं करते? हम कम से कम शुरू तो करें ना कहीं से। हम अगर असेंबली में बात ही नहीं करेंगे तो ये सिस्टम कभी शुरू नहीं होगा। जी एग्रीड, बिल्कुल आरिफ भाई, देखिए आई टोटली एग्री विद यू। ये कोई भी सिस्टम जब चलता है तो उसके लिए मुख्तलिफ आइडियाज और मुख्तलिफ डिस्कशंस और मुख्तलिफ, उसी से ही फिर इवॉल्व हुआ, उसी से सिस्टम इवॉल्व होते हैं। तो ये फिदा भाई की बात सही है। हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या जो भी हैं, वहां पे जो सिस्टम है डेफिनेटली वो एक ब्लेसिंग है। मैं तो समझता हूँ वो एक ब्लेसिंग है। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, आई एम सॉरी, लेकिन ये है कि मटीरियल, और उसमें भी उनका कसूर नहीं है। जैसे फिदा भाई ने कहा कि भी हर फैमिली में दोनों मियाँ बीवी काम करने वाले हैं और उनमें ये है कि टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि अगर कोई, हमारे बहुत सारे मुसलमान फैमिलीज के लोग होंगे जो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को जो है, अगर कोई इस तरह के इंसेंटिव्स हों तो दे विल डेफिनेटली प्रेफर के भी जो है हम उनको घर पे टेक केयर अगर हो सके उनकी। तो ये नो डाउट के दीज आर सम ऑफ द आइडियाज के जिनके ऊपर हमें सोचने की और इसको वर्कआउट करने की जरूरत है। और इट शुड बी ओपन फॉर डिबेट और इट शुड बी ओपन फॉर अ डिस्कशन।
ठीक है असद, ये इसी पॉइंट को मैं लेकर आगे जरा बढ़ता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंजर्वेटिव पार्टी बहरहाल उसके डीएनए के अंदर जो एक कंजर्वेटिवनेस मौजूद है और वो जो है हमारा, और आप इस पूरे मामले को नहीं देखते कि ये एक ऑल्टरनेटिव, मतलब ऑल्टरनेटिव क्या शेयरिंग सोल्यूशन बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल्टरनेटिव, क्योंकि जाहिर बात है लॉन्ग टर्म केयर्स की भी जरूरत है, जैसे कि मजहर ने भी कहा और फिदा ने भी कहा कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि सिंगल फैमिली यूनिट्स हैं, उनकी वो एक्सटेंडेड फैमिली यूनिट्स नहीं है, वो तो चाहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं वो लॉन्ग टर्म केयर के अंदर रहें, लेकिन एक बहुत सारी एक ऐसे इमिग्रेंट्स आए हैं जो इसमें चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, और एक मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज से बहुत सारे लोग आए, इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज से बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली का केयर करें। तो क्या उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं बिल्ड किया सकता ताकि लॉन्ग टर्म केयर के ऊपर जो है बर्डन ना आए फ्यूचर में? जरूर बना सकते। इसमें इफ यू लुक एट डिफरेंट मॉडल्स, वन ऑफ द थिंग्स हम लोग ये देख सकते हैं कि in existing dwellings, if there is room to get an extension for a home, then the municipalities can offer incentives in terms of property tax breaks. The federal government can offer incentives for deductions from the taxes so that they can invest to create the space required for housing their parents. And if you look at Brampton and other models around the GTA, where increasingly families are finding their parents living with them, you can see that the house sizes are bigger. They are building homes that have sections for their parents. So I think we should be open to everything. And we need to approach this and restart how we approach dealing with long-term care, and everything should be on the table. And like I said, it should not be restricted to any one party. I think we should have a cross-sectional approach, and I think it has to be public and private. I think the Liberals will agree with that because they sponsored that in the past. I think the NDP will push for more of a government-run model and remove profit. But I think the problem with that is, in light of COVID, we have to become a little bit more innovative because there's no funds. The government coffers are extremely strained because of the lack of tax collections. There is talk of wealth tax and all those things, but at the end of the day, we have to look at those seniors who can afford. लेकिन आप फोर्ड से ये तो कहें कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको ग्रांट्स दी हैं इस कोविड, उसको तो खर्च करें ना, उसको भी अगर खर्च करेंगे नहीं, वो अगर आप बुक इक्वल्स करने के चक्कर में पड़ जाएंगे या बजट को रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो वो जो फंड्स मौजूद है उसको तो सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। अगर फोर्ड साहब उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिस इज ऑल्सो ए ग्रे एरिया वेयर ही हैज टू इम्प्रूव एज वेल। No, there's no doubt. I mean, there's going to be definitely incentives for small businesses, and this money is going to be spent. Remember, the Ford government up until now has not really cut any expenses since they've been elected. They've carried through with most of the expenses. And I think what Ford wants to avoid is a tax increase. Because when the recovery comes, we don't want increase in taxes. We want to be having a good recovery. So, it's a complicated situation. आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने गुफ्तगू की और हमने कोशिश की इस लॉन्ग टर्म। जी फिदा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड यू हैव 30 सेकंड। देखिए, जिस तरह हमारे पास फॉरेस्टर किड होते हैं ना, फॉरेस्टर किड जी, मजे को फैमिली रखती है, इस तरह से फॉरेस्टर पेरेंट्स भी तो हो सकते हैं ना। जी जी जी। आप एक बंदा जो है वो काम नहीं कर रहा, तो वो 2-4 लोग हैं जैसे भी हैं, अगर उनको अपने घर में वो रख सकते हैं, वैसे कि काम है ना, हेल्प है, उसे आप किया जा सकता है। ठीक है, आप उसे, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है बस। ठीक है मजहर, आपने कोई 30 सेकंड में कोई बात रखनी है तो? मैं सिर्फ वही कहूंगा कि इस वक्त जो है, जो $9 बिलियन पड़ा है जो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंस को दिया है, मेरा ख्याल है कि ये लोगों को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी तक जो 90% रिलीफ है वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक वो रिलीफ नहीं मिला लोगों को। एंड इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि दैट मनी इज जस्ट सिटिंग देयर।
तो मेरा सिर्फ ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तो आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि एक बहुत जो अहम मसला है हमारे सीनियर्स के हवाले से, हमारे बुजुर्गों के हवाले से और हमारे अपने फ्यूचर के हवाले से, क्योंकि हमने भी जो है वो अब सीनियर बनना है, हम सब ने बनना है, राइट। और जब तक अगर ज़िंदगी रही तो और हमें भी ये मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। अगर हम इस सिस्टम को आज फिक्स करने की बात नहीं करेंगे तो ये कभी भी सही नहीं होगा और हमें कई एरियाज के अंदर देखना पड़ेगा, बहुत सारे जो है वो तरीक़ेकार को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर फैमिलीज जो है वो ब्रोकन हो गई, उसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं, तो हमें दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एक गुड फैमिली सिस्टम, एक सेंट्रल न्यूक्लियस सिस्टम को हमने बनाना पड़ेगा और लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, और जब ही जाकर जो है हम इस बहुत सारे मसले जो आने वाले दौर के अंदर आबादी के फैलने की वजह से और वजह से पैदा होंगे, उसको हम रोकथाम कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आरिफ जहांगीरी फिर कोई नए टॉपिक और नए मजमून के साथ आपके साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Shan gives you the authentic traditional taste of Shahi Halim. Shan, taste happiness. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. ख्वाबों का घर यूं ही नहीं मिलता, परा दिन मेहनत और रिसर्च करना पड़ती है। ऐसा घर जहां खुशियां अपनों को ढूंढती हों, जहां हर खिड़की से आने वाले कल की किरणें झांकती हों, फिर क्यों हम किसी राह चलते पर भरोसा करें। Just call 647-518-3000. Tabish Tawfiq, a truly professional realtor. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Roshan Mustaqbil. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional,
reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi and driving school car safety inspection. Winter, summer and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्जॉर्प्शन और हाथ नरम मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid 647-865-2949. कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help.